محسن وہ ایسا داتا میں دیکھوں گا واقعی آپ پوری طرح بریلوی ہو اگر بریلوی ہو تو سن کے دکھانا میں پڑھتا ہوں کسی کا ہاتھ نیچے ہاتھ جب میرا ہاتھ اٹھے تو پورا ملکہ میرے ساتھ ہو جائے مولانا فرمائے رحیم و ایسا کریم و ایسا وہ ایسا محسن وہ ایسا دادا وہ پیار سے امت کے سید صاحب کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شہزادہ پیر صلوات و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والوں کی بالخصوص جی میں دعائیں چاہتا ہوں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کے بولیں یا رسول اللہ اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر عمر کو پیکرے صدق و صفا کر دیں میں حضور تعالیٰ کی عمل کا واقعہ پیش کر رہا ہوں سماعت کر لیں ابو بکر عمر کو پیکرے صدق و صفا کر دیں ابو بکر عمر کو پیکرے صدق و صفا کر دیں جو سمانے غنی کو تاجدارے اگنیا کر دیں جو سمانے غنی کو تاجدارے اگنیا کر دیں جو سمانے غنی کو تاجدارے اگنیا کر دیں جناب ہے کرے کرنا کو شیر خدا کر دے جناب ہے کرے کرنا کو شیر خدا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنتیں ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنتیں ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جسے تو جو چاہے عطا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث آدم فیضان زندہ شاہ مدار فیضان شاہ جی مسلک اعلی حضرت کلام سرکار تاج الشریعہ سرزمین یاسین نگر مسلمانان یاسین نگر عشق محبت نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے وہ پل میں رات کو دن صبح کو وقت مسا کر دے وہ پل میں رات کو دن صبح کو وقت مسا کر دے کہا سورج نے جو چاہے حبیب کبریا کر دے کہا سورج نے جو چاہے حبیب کبریا کر دے وہ چاہے فجر کر دے ظہوریا مغرب عشاء کر دے وہ چاہے فجر کر دے ظہوریا مغرب عشاء کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سکا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سکا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے سبحان کو آسماں
سریا کو سجا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سریا کو سجا کر دیں اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اور بولے سبحان اللہ عجب طرز تخیل ہے عجب ہے عشق کا تیور زمانہ ہے فدا مرشد کے انداز تکلم پر عجب طرز تخیل ہے عجب ہے عشق کا تیور زمانہ ہے فدا مرشد کے انداز تکلم پر رضا کے جانشی کا عشق بھی بولا تو سر چڑھ کر رضا کے جانشی کا عشق بھی بولا تو سر چڑھ کر مجھے کیا فکر ہو خطر میری یاور وہ یاور مجھے کیا فکر ہو خطر میرے یاور وہ یاور بلا تو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلا جو میری خود گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ اور بولے یا رسول اللہ زمانہ جب ستائے تو زمانہ جب ستائے تو مدینہ یاد کر لینا 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 اگر کوئی دکھائے تو مدینہ یاد کر لینا اگر کوئی دکھائے تو مدینہ یاد کر لینا اگر کوئی ستائے تو مدینہ یاد کر لینا کتنا یاد آتے ہیں نبی ایک دم اچھا کلام پیش کر رہا ہوں بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ کتنا یاد آتے ہیں نبی ہے نبی ہے نبی ہے نبی ہے نبی کتنا یاد آتے ہیں نبی یہ کبھی شمار مت کرو کتنا یاد آتے ہیں نبی یہ کبھی شمار مت کرو کتنا یاد آتے ہیں نبی یہ کبھی شمار مت کرو دھڑکنوں حساب جوڑ کر دھڑکنوں حساب جوڑ کر مصطفیٰ سے پیار مت کرو اللہ 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 کیا دھڑکنوں حساب جوڑ کر مصطفیٰ سے پیار مت کرو دھڑکنوں حساب جوڑ کر ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں بلند آواز سے بولیے گا دھڑکنوں حساب جوڑ کر مصطفیٰ سے پیار مت کرو اور ساتھ بھائی میں شعر پڑھ رہا ہوں بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ ان کے رب نے ان سے یہ کہا
उनके रब ने उनसे ये कहा पूरा होगा आपका कहा। उनके रब ने उनसे ये कहा पूरा होगा आपका कहा। उनके रब ने उनसे ये कहा पूरा होगा आपका कहा। ए हबीब आप रात दिन, ए हबीब आप रात दिन खुद को अश्क बार मत करो। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने जिंदा शाहमदार, मसलके आला हजरत, जश्ने उवैसे करनी, सरजमीने यासीन नगर। सुभान अल्लाह। ए हबीब आप रात दिन खुद को अश्क बार मत करो। और आप देखना है कि सामने कुछ और पीछे में कुछ और होता है। तो शेर पे पेश करा समाप्त कर ले। ज़ाहिरी जो उनका हाल है, ज़ाहिरी जो उनका हाल है, ये वहाँ भी जो की चाल है। चाहता हूँ ज़ाहिरी जो उनका हाल है, ये वहाँ भी जो की चाल है। ज़ाहिरी जो उनका हाल है, ये वहाँ भी जो की चाल है। कह गए बरेली के रज़ा, कह गए बरेली के रज़ा, उनका एतबार मत करो। बरेली के रज़ा, उनका एतबार मत करो। कितना याद आते हैं नबी, ये कभी शुमार मत करो। और जो लोग कहते हैं ना, समझाने के बावजूद भी कहते हैं कि झूठ ना बोलो तो काम नहीं चलता, लेकिन उमर फारूक साहब ने इस शेर में हक अदा कर दिया। समाप्त करें। अज़मतें जो चाहिए तुम्हें, रहमतें जो चाहिए तुम्हें, अज़मतें जो चाहिए तुम्हें, रहमतें जो चाहिए तुम्हें, अज़मतें जो चाहिए तुम्हें, रहमतें जो चाहिए तुम्हें। अरे झूठ जिसमें बोलना पड़े, झूठ जिसमें बोलना पड़े, ऐसा कारदार मत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब-ए इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम। नारे तकबीर। झूठ जिसमें बोलना पड़े, ऐसा कारोबार मत करो। कितना याद आते हैं नबी, ये कभी आवाज को निकाल ले, ये कभी शुमार मत करो। ऐसा कुछ करो कि खुद भी, ऐसा कुछ करो कि खुद भी चल के आए आपकी तरफ। जन्नत की ख्वाहिश में तो सब है, लेकिन काम नहीं करते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हिदायत फरमाए कि ऐसा कुछ करो कि खुद भी चल के आए आपकी तरफ। ऐसा कुछ करो कि खुद भी चल के आए आपकी तरफ। अज़हर आप खुद के लिए, अज़हर आप खुद के लिए खुद को बेकरार मत करो। अज़हर आप खुद के लिए खुद को बेकरार मत करो। कितना याद आते हैं नबी, क्या कहने में, कितना याद आते हैं नबी, ये कभी शुमार मत करो। हम आशिक सरकार थे। वाह वाह, ये कलाम किसी ने कहा है, पढ़ लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, बात करें।
हम आशिक सरकार पे, हम आशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है, 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 हम आशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है। अगर से मोहब्बत करते तो एक दीवाने का हाथ उठना चाहिए और मेरे साथ पढ़ेंगे, पढ़िएगा बड़ा नवाज से। हम आशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है, हम आशिक सरकार पे जो रंग चढ़ा है, ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा है, ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा है, ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा है। जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग वहाबी का उड़ा है, जिस रंग से हर रंग वहाबी का उड़ा है, ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा है, ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा है, ये रंग रज़ा। वाह वाह वाह। अरे यार अगर बोलोगे तो अच्छा लगेगा, है नहीं? जरा हाथों को बड़ा करके बोलेगा। ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा है, ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा है। मुस्तफ़ा नबी से न डरे हैं न डरेंगे, क्या बात है, वाह। गुस्ताख नबी से न डरे हैं न डरेंगे, तलवार की साए में भी हक बात करेंगे। गुस्ताख नबी से न डरे हैं न डरेंगे, तलवार की साए में भी हक बात करेंगे। ये मर्द मुजाहिद ने, ये मर्द मुजाहिद ने, ये मर्द मुजाहिद ने, ये मर्द मुजाहिद ने सऊदी से कहा है, ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने शहीद आदम, पैदाने गौसे आदम, पैदाने जिंदा शाहमदार, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। वाह। वादी रज़ा की कोई माले रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। मैदान इल्म फन पे, मैदान इल्म फन पे इजारा रज़ा का है, तकवा बुलंद फतवा अनोखा रज़ा का है। अब मैं वो शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह आला हज़रत शहजाई उठ करके नारा लगाएगा। पेश करो हसन भाई, देखें। सुन्नी से वहाबी का कोई मेल नहीं है, अरे मसलक है रज़ा का ये कोई खेल नहीं है। सुन्नी से वहाबी का कोई मेल नहीं है, मसलक है रज़ा का ये कोई खेल नहीं है। सुन्नी से वहाबी का कोई मेल नहीं है, अरे मसलक है रज़ा का ये कोई खेल नहीं है। सुन्नी से वहाबी ना मिला है ना मिलेगा, सुन्नी से वहाबी ना मिला है ना मिलेगा, ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा। हाथों को पकड़ के बोलो। ये रंग रज़ा, ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा है। अल्लाह पाक इनको करोड़पति बना दे, अल्लाह पाक इनको मदीने का हाजी बना दे। और कोई दुआ अब और दूसरा नारा गाएगा इंशाअल्लाह, मैं उसके लिए भी दुआ करूंगा। बुलंद आवाज़ से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। ये रंग रज़ा रंग रज़ा रंग रज़ा है। मैं ये शेर दोबारा पढ़ रहा हूँ, पीछे से इशारा हो रहा है कि शेर दोबारा पा जाए। आप सुनेंगे, आप सुनेंगे? जरा हाथों को लगा करके बोले इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत।
रंग रसा रंग रसा रंग रसा है, ये रंग रसा रंग रसा रंग रसा है। सुन्नी से वहाबी का कोई मेल नहीं है, मसलक है रजा का ये कोई खेल नहीं है। सुन्नी से वहाबी का कोई मेल नहीं है, मसलक है रजा का ये कोई खेल नहीं है। सुन्नी से वहाबी न मिला है न मिलेगा, सुन्नी से वहाबी न मिला है न मिलेगा। ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, रंग रजा है, सुभान अल्लाह। ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है, रंग रजा है, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। सरकार के दुश्मन को संभलने नहीं देंगे, बद मज़हबों को फूलने फलने नहीं देंगे। सरकार के दुश्मन को संभलने नहीं देंगे, बद मज़हबों को फूलने फलने नहीं देंगे। ये दर्स हमें आज, ये दर्स हमें आज शरीयत ने दिया है, ये दर्स हमें आज शरीयत ने दिया है। ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। ये रंग रजा रंग रजा। अगर इजाजत हो तो मैं बारगाह ताशरीफ को शुरू करता हूँ हसन भाई इंशाअल्लाह ताला। हाँ वरना नमाज से कह दे सुभान अल्लाह। मेरी पहचान ज़हरी, सब मोहब्बत करने वाले हैं, है कि नहीं? सब मोहब्बत करते हैं, तेरी मोहब्बत करते हो तेरी बुलंद आवाज होना चाहिए। मेरी पहचान ज़हरी, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी। तुम बुग़्ज़ की ओटों से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बुग़्ज़ की ओटों से उतर क्यों नहीं जाते। जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। अरे कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी जान ज़हरी। तारा के वास्ते न ज़मींदार के लिए, ना बादशाह न वक्त के सरदार के लिए, ना बादशाह न वक्त के सरदार के लिए। अख्तर रज़ा हुजूर की शान देखिए, अख्तर रज़ा हुजूर की शान देखिए। काबा खुला है अज़हरी सरकार के लिए, मेरी पहचान ज़हरी है, मेरी है, मेरी जान ज़हरी। कि ताल्लुक अपने मसलक का कराना भी जरूरी है, जरा अपने ताल्लुक से बताना भी जरूरी है। कि ताल्लुक अपने मसलक का कराना भी जरूरी है, जरा अपने ताल्लुक से बताना भी जरूरी है। उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो यूं बोले, रज़ा के नाम का नारा लगाना भी जरूरी है। उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो यूं बोले, रज़ा के नाम का नारा लगाना भी जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर कुछ सुनाऊं क्या। खानदान वालों की दुआएं चाहता हूँ, हालांकि मिसरा छोटा है मगर बात बहुत बड़ी है। और शेर चाहे जंगल का हो या शायरी का शेर शेर होता है, लिहाजा शेर को शेर बनकर के सुनिएगा। और मैं जो मूड में लेकर के इस वक्त बैठा हूँ, वो मूड में जो मेरे जहन में है वो शेर पढ़ने लगा हूँ। खुदा की कसम उछल जाएंगे आप। पहले इस शेर को सुन लें कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या।
क्या सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? हमने तुम्हारी इतनी तारीफ करी, उसके बाद भी कोई भी असर नहीं हो रहा है। तुमसे तुम बोलो, मेरे नंबर पर तुम बोलो यार। सिंगल बॉडी का हूँ, ये लड़के जितने खड़े हैं अल्लाह पाक सबको डबल सवाब। ये बता दो खुदा के बंदो, कौन सी सलाजीत हाथ लग गई है तुम्हारे कि तुम्हारे पैरों में दर्द ही नहीं होगा? बहुत देर से खड़े हो तुम, खड़े तुम हो, दर्द मेरे पैरों में। बैठ जाओ मेरे लाल। इतने खूबसूरत लड़के यासीन नगर में खड़े होकर के जलसा सुनना, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ? कितने खूबसूरत लड़के हैं, अल्लाह इनकी खूबसूरती में और बरकत अता फरमाए। और तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत वो तीन भाई मेरे दिख रहे हैं, सबसे अलग दिख रहे हैं, सबसे अलग। इतने बड़े अच्छे लड़के हैं। अच्छा बैठ जरूर जाते हैं लड़के, बैठ जरूर जाते हैं, बात मानते हैं ना। वो जानते हैं कि कोई और नहीं हसान रजा है, ये कभी भी कुछ भी कह के बैठा सकते हैं, लेकिन ये मेरे खानदान वाले सब जानते हैं मैं किस अंदाज से लोगों को बैठा लेता हूँ। मैं प्यार भी बहुत करता हूँ और कभी पकड़ करके कमरे में बंद भी बहुत जल्दी कर देता हूँ। अच्छी बात यह है कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नाक के शेर को सुनाऊं क्या, सब्ज गुंबद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या। आने वाला शेर खुदा की कसम बहुत अच्छा है कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नाक के शेर को सुनाऊं क्या, सब्ज गुंबद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या। उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या। उनकी अजमत नजर नहीं आती, उनकी अजमत नजर नहीं आती, उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या। सर उठाने लगे हैं फिर नजदीक, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या। सर उठाने लगे हैं फिर नजदीक, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या। आप लाए हो सैकड़ों नजदीक, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या। एक शेर पढ़ता हूं, ये बताएं कितने लोग, अल्लाह का शुक्र है हम मदारे पाक से भी मोहब्बत करते हैं और गौसे पाक से भी मोहब्बत करते हैं, शाजी मियाँ से भी मोहब्बत करते हैं, सालार मसूद गाजी से भी मोहब्बत करते हैं, वारिस देवा से भी मोहब्बत करते हैं और सागरे पाक से भी मोहब्बत करते हैं, निजामुद्दीन औलिया से भी मोहब्बत करते हैं तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है जितने भी अल्लाह के वली हैं हम सबसे मोहब्बत करते हैं, है कि नहीं। और मोहब्बत करना भी चाहिए। डंके की चोट पर कहते हैं कि समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है। फिर यार खामोश हो गए तुम। कि समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूँ जमाना क्या समझता है। कि समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है। इस शेर को मैं अपने भेजे से निकालकर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका भेजा कबूल करे तो अपने भेजे में रख लेना, अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकालकर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना। कल देहरादून के जलसे में देहरादून के सामाइन के भेजे तक भेजने की मैं कोशिश करूंगा, तो क्या आप सुभान अल्लाह की आवाज अपने भेजे से निकालकर मेरे भेजे तक भेज सकते हैं? अगर भेज सकते हैं तो सीधा हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। इस समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूँ जमाना क्या समझता है। और मदारे पाक अपनी कब्र से आवाज देते हैं, अभी जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है। मदारे पाक अपनी कब्र से आवाज देते हैं, अभी जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है। इसीलिए कहते हैं कि सज्जदे कौनैन का जिसको घराना चाहिए उसको कुतुबे दो जहां के पास आना चाहिए। सज्जदे कौनैन का जिसको घराना चाहिए उसको कुतुबे दो जहां के पास आना चाहिए। आपकी तौसीफ लिखने के लिए कुतुबुल मदार बिरयकी अहले कलम को एक जमाना चाहिए, बिरयकी अहले कलम को एक जमाना चाहिए। और कारी रिहान साहब जब मदार साहब की बात हो गई तो शाजी मियाँ की भी बात कर लेते हैं। जरा शाजी मियाँ के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह। कि ख्यालों ही ख्यालों में कहाँ जाते हैं दीवाने, कि ख्यालों ही ख्यालों में कहाँ जाते हैं दीवाने। कभी बगदाद रहते हैं कभी अजमेर रहते हैं, बलाएं इसलिए उस शहर की जानिब नहीं जाती कि पीलीभीत में शाजी मोहम्मद शेर रहते हैं। बलाएं इसलिए उस शहर की जानिब नहीं जाती कि पीलीभीत में शाजी मोहम्मद शेर रहते हैं। अब चलते हैं हम वारिस देवा की बारगाह में। कौन है वारिस देवा कि बढ़ गया है बिलियकी उस शख्स का रुतबा शरीफ जिसने देखा आपका फिर आपका चेहरा
चेहरा शरीफ, बढ़ गया है बिलयकी उस शख्स का रुतबा शरीफ जिसने देखा आपका फिर आपका चेहरा शरीफ। सारी दुनिया कह रही है वारिसे आलम पना, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ। सारी दुनिया कह रही है वारिसे आलम पना, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ। अब चलते हैं सालार मसूद गाजी की बारगाह में। कौन है सालार मसूद गाजी? इसीलिए तो सीना ठोक कर कहते हैं मक्का है हमारा वो मदीना है हमारा, मक्का है हमारा वो मदीना है हमारा, बगदाद और नजफ गलियरो देवा है हमारा। जिस दिन से कदम सैयदे सालार के आए, भारत में उसी रोज से कब्जा है हमारा, भारत में उसी रोज से कब्जा है हमारा। ये तमाम अल्लाह के मुकद्दस वली एक कादरी झंडे के नीचे खड़े होकर के बारगाह गौसियत में खराज अकीदत पेश करते हैं। और मालूम है क्या कहते हैं कि हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आदम। खानदान वालों की बिलखुसूस दुआएं कि हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आदम, गुंजाइश शब्बरो शब्बीर है गौसे आदम। हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आदम, गुंजाइश शब्बरो शब्बीर है गौसे आदम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आदम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, अगर पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आदम। बड़े पीरों में के बड़े पीर हैं गौसे आदम, के बड़े पीर हैं गौसे आदम। इनकी जो फरमाइश है उनकी फरमाइश पे इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा। लेकिन मेरा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दिल से कहें या रसूल अल्लाह। की बारगाह रह गई 4 मिसरों मैच से वापस के समंदर एक मर्तबा गरीब नवाज के नाम पर कहते सुभान अल्लाह। जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले बे नूर को एक पल में नूरानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बनके जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बनके जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। और रूबरू वो कभी असनाम नहीं कर पाया, एक दुर्वेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया, पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया, पृथ्वीराज भी। अरे जियो मेरे लाल जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इतना कमजोर आदमी और आवाज कहां से कहां। अल्लाह तुम्हें भी सेहत से माला माल करना, मुझे भी सेहत से। कभी कभी सोचते थे हमसे ज्यादा कमजोर कोई आदमी रहता नहीं। जब से 2-4 लोग नजर के सामने आए टेंशन ही खत्म हो गई। कि हस्सान घबराओ मत, तुमसे भी कमजोर लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अब बगैर किसी ताकीर के आपकी समातों के हवाले, क्योंकि मैं जानता हूँ ये यासीन नगर है, यहाँ अच्छे शेर पर लोग दुआ भी बहुत जल्दी कर देते हैं और ज्यादा वक्त लेने वाले के लिए बददुआ भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो दोनों चीज देख करके काम करना भैया है कि नहीं। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ अपनी जमात का वो खिलता हुआ चेहरा, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पड़ोसी भी हैं और अल्लाह का शुक्र है आपकी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं। मुझे अभी पता चला तो बड़ी खुशी हुई। कलंदर आदमी जहाँ पहुँच जाए वह दीन का काम करते हैं। हालांकि इनका कद छोटा है, मगर इनका मर्तबा बहुत बड़ा। मालूम है मेरे पीर सरकार कादिर शरिया का मदरसा जामिअतुल रदा मथुरापुर सीबीगंज बरेली शरीफ में जिन्होंने तालीम हासिल की, अल्लाह का शुक्र है वो आज आपकी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम है। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत तर्जुमानी मसलकी आला हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मोहसिन रजा मरकजी साहिब क़िबला खतीब व इमाम जामा मस्जिद यासीन नगर नवाबगंज मरकजी अहले सुन्नत बरेली शरीफ, उनका इस्तकबाल कर लें। इनके नंबर पर तुम धीरे से लगा लो, कोई टेंशन की बात नहीं, ये तुमसे कल मिल ही लेंगे अच्छे से। लेकिन नारे तकबीर, और धीरे बोलो कहीं पुलिस पकड़ के नहीं जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने जिंदा शहमदान, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी।
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم إلى آخره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر جب آنا ہوا ویسے تو بہت ہی وسیع و عریض تقریر کا ارادہ تھا، لیکن جب اسٹیج پر آئے تو تقریر کو کیا ہے سمیٹ دیا، اس کے بعد تھوڑا اور سمیٹا، پھر اور سمیٹا. اب بہت ہی زیادہ سمٹی ہوئی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. ویسے جس حساب سے سمیٹنا چاہیے تو اس حساب سے ویسے سلام بچتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کچھ سنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی. تفرقہ بازی یعنی فرقوں میں بڑھ گئے، اپنے اپنے گروہ بنا لیے. اے محبوب ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. ان سے کیا ہے ان کا معاملہ ان کے رب کے سپرد ہے. ان کا رب کیا ہے ان سے نپٹ لے گا جو وہ کرتے ہیں. حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ بنانے سے منع فرمایا، فرقہ بازی سے منع فرمایا. تو اس آیت کریمہ کو لے کر کے لوگ یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ دین میں کیا ہے فرقے نہیں بنانا چاہیے، اور جو لوگ فرقوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں، دیابنا اور وہابیہ کے خلاف بولتے ہیں، بلکہ وہ فرقہ بناتے ہیں. حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا ہوں بلکہ دیابنا اور وہابیہ کے خلاف بولنا فرقہ بازی نہیں ہے. حضرات محترم یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے زنا کو بھی حرام فرمایا ہے، زنا سے روکا ہے، چوری کو حرام فرمایا ہے، ان تمام برائیوں سے روکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں شراب سے منع فرمایا ہے، شراب کو برا بتایا ہے. حضرات محترم شراب کو حرام فرمایا ہے، لیکن یاد رکھو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث میں فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب قیامت قریب ہوگی تو کیا ہے لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگ کیا ہے جوا کھیلیں گے. حضرات محترم زناکاری عام ہو جائے گی، اسی طرح ہے بے حیائی عام ہو جائے گی، لوگ کیا ہے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان تمام برائیوں سے باز رہو، لیکن دوسری طرف حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں یہ ساری برائیاں عام ہو جائیں گی تو قرآن پاک کا حکم ماننا واجب ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا واجب ہے. ان تمام برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تو ان ساری برائیوں کا آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے بدل نہیں سکتا ہے. اسی طرح حضرات محترم اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرقہ بنانے سے منع فرمایا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور 73 کے 73 میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ کیا ہے جنتی ہوگا. حضرات محترم یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. زمانہ بدل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو 73 فرقے ہو کر رہنے ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ بات غور سے سنیں گے تب سمجھ میں آئے گی. بہت جلد کوشش کرتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے کی کہ میرے بات بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو فرقہ بنانے سے منع اللہ نے فرمایا ہے، لیکن فرقے بنیں گے یہ کیا ہے حضور نے بیان فرمایا ہے.
दोनों बात हकीकत है। अब हजरात मोहतरम बयान करता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हदीस पाक बयान फरमाई कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, लेकिन उनमें से एक फिरका जन्नती होगा। हजरात मोहतरम वो फिरका कौन सा जन्नती होगा? हुजूर फरमाते हैं ये वो फिरका होगा जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा इकराम के तरीके पर होगा। हजरात मोहतरम अब जरा गौर कीजिए कि आज के दौर में जो फिरके हैं, देवबंदी एक अलग फिरका है, वहाबी एक अलग फिरका है, अहले हदीस एक अलग फिरका है, मिनहाजियत एक अलग फिरका है, कादियानियत एक अलग फिरका है, कादियानियत अलग एक अलग फिरका है, सुरहकुल्लियत एक अलग फिरका है। हजरात मोहतरम इसी तरह बहुत सारे फिरके हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन हजरात मोहतरम हम खुद को कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात हक पर है, अहले सुन्नत वल जमात ही हक पर है, अहले सुन्नत जो फिरका है वही जन्नती है। हजरात मोहतरम इसकी दलील क्या है वही मैं पेश करता हूँ आपके सामने। सुनो हजरात मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, जो फिरका मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा बस वही फिरका जन्नती है। अब हम देखते हैं कि जो देवबंदी फिरका है इसके तरीके इसके अकायद के सहाबा के तरीके से मिलते हैं, सहाबा के अकायद से मिलते हैं। तो जरा गौर फरमाइए सहाबा का अकीदा क्या है? सहाबा का अकीदा वही है जो कुरान में मौजूद है। लेकिन हजरात मोहतरम देवबंदियों के क्या अकायद है? देवबंदियों के 40 अकायद ऐसे हैं जो कुफरिया है, उसमें से मैं चंद बयान करता हूँ। देवबंदी कहता है, देवबंदियों का मौलवी रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी, कासिम नानोतवी, अशरफ अली खान भी कहता है कि खुदा ताला झूठ बोल सकता है। हजरात मोहतरम वही कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का इल्म नहीं है कि बंदा क्या करने वाला है, लेकिन जब बंदा उस काम को अंजाम देता है तो अल्लाह तबारक व तआला को पता चलता है। इसी तरह कहता है कि मादल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर मरकर के मिट्टी में मिल गए। इसी तरह देवबंदियों का अकीदा है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए और जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। हजरात मोहतरम देवबंदी कहता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम हमारे भाइयों की तरह है और उनकी बीवियां हमारी बहनें हैं, उनकी बीवियां हमारी भाभियां हैं। मादल्लाह रब्बिल आलमीन देवबंदी कहता है कि हुजूर का इल्म शैतान के इल्म के बराबर है। देवबंदी और वहाबी कहता है कि हुजूर का इल्म पागलों की जैसा है। हजरात मोहतरम इस सारे जो सारे अकायद ये देवबंदियों के अकायद है, ये कुफरिया है। देवबंदी कहता है कि हुजूर के बाद अगर कोई नबी हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो हुजूर के खात्मे नबुव्वत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हुजूर के बाद किसी दूसरे नबी का आना मुमकिन है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है और अल्लाह के आखिरी रसूल है, अल्लाह के आखिरी नबी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं अना आखिरुन नबी व अंतुम आखिरुल उम्म ला नबिय्य बादी, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, तुम सबसे आखिरी उम्मत हो, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरात मोहतरम देवबंदियों के सारे अकायद क्या है? कुफरिया है, जिसकी बुनियाद पर देवबंदी और अहले हदीस या उसके अलावा जो वहाबिया फिरका है या उसके अलावा जो कादियानियत फिरका है जो हुजूर के बाद दूसरे नबी आने के कायल है। हजरात मोहतरम इस सारे के सारे फिरके खारिज अल इस्लाम है। हुजूर आला हजरत ने इन्हीं इनके कुफरिया अकायद की बुनियाद पर अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी, कासिम नानोतवी, इन्हीं 4 उलमा पर कुफ्र का फतवा लगाया था, जिसकी तस्दीक हरमैन शरीफैन के 300 से ज्यादा उलमा ने की थी। हजरत मोहतरम हुजूर सय्यदी आला हजरत ने इसी जमात के बारे में फरमाया था मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफ़र, जो इनके काफिर होने में शक करता है वो भी काफिर हो जाता है। बेशक बहुत अच्छा मरकजी साहब, क्या बात है, वाह या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद आज मोहतरम आपके सामने मैंने देवबंदियों के अकायद पेश किए।
अब उसमें से जो दो अकीदे मैंने बयान किए जो कुफरिया थे, एक अकीदा कहता कि हुजूर का इल्म मादल्लाह रब्बिल आलमीन पागलों की तरह है, हुजूर का इल्म क्या है शैतान के बराबर है मादल्लाह। दूसरा अकीदा कहता देवबंदियों का, वो अकीदा ये था कि हुजूर मरकर के मिट्टी में मिल गए। बस मैं इन दो अकीदों की कुरान और हदीस के साथ दलील देता हूँ। जो हमारे अकीदे हैं उनकी दलील मैं कुरान और हदीस के साथ देता हूँ, फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रात मोहतरम, देवबंदी कहता है कि हुजूर का इल्म शैतान के इल्म के बराबर है, हुजूर का इल्म शैतान के इल्म के बराबर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है? फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील। हज़रात मोहतरम, ए महबूब तुम फरमा दो दुनिया का सामान थोड़ा है। अब हज़रात मोहतरम मेरी बात पर गौर कीजिए, अगर आप मेरी बात पर गौर करेंगे तो आपके बात समझ में आएगी, अगर गौर नहीं किया तो आपके कान के पास से निकल जाएगी। कलील का माना क्या आता है? कल भी मैंने ये बात बयान की थी। कलील का माना आता है थोड़ा, कलील का माना आता है थोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील। इस कलील पर, लफ्ज़ कलील पर जो दो पेश है इसको तनवीन कहा जाता है। तनवीन की कई किस्में होती हैं, तनवीन तरन्नुम, तनवीन तमक्कुन। उसी तरह एक किस्म होती है तनवीन तरकीब, जो क्या है किल्लत पर दलालत करती है, यानी कम पर दलालत करती है। कलील का माना पहले से ही कम था, उस पर एक तनवीन आ गई, दो पेश आ गए। अब उसका माना हो गया कि ए महबूब तुम फरमा दो कि दुनिया का सामान बहुत ज्यादा कम है। अब हज़रात मोहतरम गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया दुनिया का सामान बहुत ज्यादा कम है। अब जरा गौर करो कि हमारे सामने जो दुनिया का सामान मौजूद है, आप उसको गिनने, आप उसको शुमार करना शुरू कीजिए। हम सारे इंसान भी एक दुनिया का सामान है। ये तमाम चीजें जो आपके सामने मौजूद है ये भी क्या है? दुनिया का सामान है। या उसके अलावा जो भी चीजें हैं सब दुनिया का सामान है। पूरी दुनिया का जर्रा जर्रा दुनिया का सामान है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता है ये बहुत ज्यादा कम है। आप इसको शुमार करना शुरू करें, गिनना शुरू करें, यकीनन आप इसको गिन सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं गिन सकेंगे। आप जिस कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करेंगे यकीनन वो कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं बना है जो इंसान के है दुनिया के सामान को उसके जरिए से शुमार कर सके। अब जरा गौर करो हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नजदीक थोड़ा जो है वो इतना है कि हम शुमार नहीं कर सकते। अब अल्लाह के नजदीक जो ज्यादा होगा वो कितना होगा? अब चलते हैं 30वें पारे की तरफ। इन्ना अतैना कल कौसर। हज़रात मोहतरम, कसीर का माना आता है ज्यादा, कसीर का माना क्या आता है? ज्यादा। अक्सर का माना आता है बहुत ज्यादा, अल अक्सर का माना आता है बहुत ज्यादा, अब कौसर का माना आता है उससे ज्यादा, और अल कौसर का माना आता है उससे भी ज्यादा। अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना अतैना कल कौसर। ए महबूब हमने तुम्हें कौसर अता किया है, ए महबूब हमने तुम्हें बहुत बहुत अता किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हज़रात मोहतरम, जब दुनिया का सामान थोड़ा है और इस थोड़े को जब हम शुमार नहीं कर पाए, पूरी दुनिया मिलकर तो ये भी शुमार नहीं कर सकती है, तो ये देवबंदी वहाबियों ने जो अल्लाह के थोड़े को शुमार नहीं कर पाते हैं, उन्होंने अल्लाह के बहुत ज्यादा को कैसे शुमार कर लिया और नबी के इल्म को शैतान के इल्म के बराबर कैसे करार दे दिया। हज़रात मोहतरम, एक बार की बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम जबल के पहाड़ पर मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ में है, हज़रत उमर फारूक आज़म भी साथ में है, हज़रत उस्मान गनी भी साथ में है। देखते क्या है कि पहाड़ थरथराने लगता है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ उमर ठहर जा, तेरे ऊपर एक सिद्दीक और दो शहीद हैं। हज़रात मोहतरम, ये हदीस पाक इस बात की गवाही देती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब है। दूसरी हदीस में हुजूर बयान फरमाते हैं, दूसरी हदीस में हुजूर मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हुजूर बयान फरमाते हैं, नमाजियों से बयान फरमाते हैं, आप नमाज पढ़ाने के बाद खड़े होते हैं, खड़े होकर के फरमाते हैं ऐ मेरे मुक्तदियो, ऐ मेरे साहबियो, मैं जिस तरह नमाज में आगे देखता हूँ इसी तरह मैं नमाज में पीछे भी देखता हूँ। हुजूर आला हज़रत तशरीफ तो फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो गया, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज करके हज़रात मोहतरम आपके सामने से उठता छूटा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? देवबंदियों का एक अकीदा था कि नबी क्या है मरकर के मिट्टी में मिल गए। अब ये देवबंदियों का अकीदा है, लेकिन साहबे कराम का अकीदा क्या है? कुरान क्या कहता है? आइए उसकी तरफ चलते हैं। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। हज़रात मोहतरम, कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तो उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है और इनकी जिंदगी का तुमको शऊर नहीं है। हज़रात मोहतरम, ये मर्तबा किसका है? ये मर्तबा एक शहीद का है। और शहीद का मर्तबा कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा शहीद का मर्तबा बहुत अगर ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन किसी साहबी
सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। हजरत मोहतरम शहीद का मर्तबा किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला शहीद के बारे में फरमाता है, क्या फरमाता है, तुम उनको मुर्दा ना कहो। और शहीद का मर्तबा जब एक सहाबी तक नहीं पहुंच सकता है हजरत मोहतरम, तो गौर कीजिए इन्होंने किसको मुर्दा कहा है? माअल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलाम को मुर्दा कहा है। और किस नबी को मुर्दा कहा है? उस नबी को मुर्दा कहा है जो कि ताजदारुल अंबिया है। जरा गौर करो हजरत मोहतरम, जब शहीदों की हयात का ये आलम है कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, जब वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, तो अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात का आलम क्या होगा? हजरत मोहतरम एक मसला बयान करता हूँ, फिर अपनी बात को खत्म करता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात बढ़ती जा रही है, मुझे वक्त का भी ख्याल है, लेकिन इसी ज़मीन में एक मसला बयान करता हूँ। हजरत मोहतरम समाप्त कीजिए, जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मरता है, जब इंसान इस दुनिया से जाता है, तो क्या उसकी विरासत तकसीम की जाती है? उसकी विरासत तकसीम की जाती है, उसका माल क्या है? उसके वारिसीन में बढ़ जाता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम क्या है? अंबिया की जमात है, हमारा माल तकसीम नहीं होता है। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि माल उसका वक्ता है जो कि मर जाता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जिस तरह कल जिंदा थे उसी तरह आज भी जिंदा है। इसी तरह हजरत मोहतरम वो इंसान वो मर्द जिसकी वो शौहर, वो औरत जिसका शौहर मर जाता है, वो औरत जिसका शौहर मर जाता है, तो उसका क्या है? निकाह फस्ख हो जाता है, उसका निकाह टूट जाता है। तो उसकी बीवी के लिए जायज होता है, क्या जायज होता है कि वो तो किसी दूसरे से शादी कर सकती है। लेकिन हजरत मोहतरम कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की बीवियों के लिए ये जायज नहीं है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद किसी से निकाह करे। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जिस तरह कल जिंदा थे उसी तरह आज भी अपनी कब्रों में जिंदा है, इसी तरह आज भी अपनी कब्रों में जिंदा है। क्योंकि जब उनको मौत नहीं आई, वो फकत एक आन के लिए उनको मौत आई, वो जिंदा है तो उनका निकाह भी सलामत है। और जब तक किसी औरत का निकाह एक मर्द के साथ रहता है वो किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। हजरत मोहतरम, ये मैंने आपके सामने देवबंदियों के अकायद बयान किए, वजह सिर्फ पेश करना चाहता हूँ, फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वजह यह है कि आज के दौर में आपको मालूम है कि किस तरह से ये फिरका बढ़ता जा रहा है। आपकी बस्ती में भी ऐसे मदरसे हैं जिनमें क्या है आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं। जरा गौर करो वो बच्चे कौन हैं जो उस मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो किसी गैर के बच्चे नहीं हैं, वो हमारे या आपके बहन भाई हैं। यकीनन वो हमारे या आपके बहन भाई हैं। अगर जाहिर सी बात है, आज मौलाना रेहान साहब ने क्या है हजरत को पढ़ाया है, इनकी दस्तार बंदी हो रही है। जब इनने तालीम इनके पास हासिल की है तो जो अकायद इनके हैं इन्होंने उनको सिखाए हैं, उनके सीने में मुंतकिल किए हैं। जब ये क्या है दुनिया में जाकर के इस्लाम की इशाअत करेंगे, दीन की तबलीग करेंगे, तो जो अकायद हजरत ने सिखाए हैं वही अकायद ही क्या है ज़माने में फैलाएंगे। जब ये दुनिया में जाएंगे तो क्या है दुरूद फातिहा को बिदअत नहीं कहेंगे, अपने वालिदैन के लिए क्या है ईसाले सवाब करेंगे। अगर आपके घर पे मिलाद खानी होगी, अगर आप अपने बाप का 40वां कराएंगे, तुम्हारे लिए भी क्या है ये ईसाले सवाब करेंगे। लेकिन आप जिस मदरसे में अपने के बच्चों को भेज रहे हो, यकीनन वो ऐसा मदरसा है जहां जाने के बाद उस बच्चे का ईमान चला जाएगा। उसके जिम्मेदार कौन होगा? आप भेज रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। और जब वो बच्चा उस मदरसे से जाने के बाद अपने दीन की तबलीग करेगा, देवबंदियत को फैलाएगा, वो जितनों का ईमान छीनेगा, जितने लोगों के ईमान के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। हजरत मोहतरम, आपको एक कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन आपकी नादानी की वजह से या आपकी बेफिक्री की वजह से वो कदम आप नहीं उठा पाए, जिसका असर आज बहुत ज्यादा बुरा पड़ रहा है। लेकिन मैं कहता हूं अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया, आज अगर आपने इस बात पर पाबंदी न लगाई, तो एक ना एक दिन देखना, ज्यादा नहीं 10 साल के बाद आप इसी यासीन नगर में देखना कि इस यासीन नगर के चारों तरफ क्या सफेद सफेद टोपियां नजर आएंगी। कोई बरकाती टोपी लगाएगा तो उसको बरकाती टोपी लगाने से रोका जाएगा। आप अगर अपने घर में फातिहा कराओगे तो क्या है उसको बिदअत कहा जाएगा। अगर तुम्हारे बाप का जनाजा पड़ा होगा, उस पर हाथ उठाकर जब दुआ करोगे ना तो उसको दुआ करने को भी रोका जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की जाएंगी। तुम लोगों की
जिम्मेदारी है कि ऐसे मदरसों से जिनका बाइकाट क्या है अहले सुन्नत ने किया है, उनसे क्या है बाज रहो। अगर वो तुमको क्या है सिर्फ 8 तक नहीं बल्कि क्या पूरी जिंदगी तुमको फ्री में पढ़ाए तो क्या है पैसे से बढ़कर के यानी ईमान से बढ़कर के पैसा नहीं है, तुम पैसे के खातिर अपने ईमान का सौदा हरगिज़ ना करो। हजरात मोहतरम अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे हैं, कारी रेहान साहब पढ़ाते हैं, इनके पास भेजे, मेरे पास पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजे। उसके अलावा आपके यासीन नगर में एक मदरसा और खुलने वाला है, जनाब यूसुफ हाफिज साहब भी अपने एक मदरसा खोलने वाले हैं। आप क्या है उस मदरसे में अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें, ताकि जिस तरह आप अपने बाप दादा के दीन पर चलते आए हो, जिस तरह तुम्हारे बाप दादा के अकीदे दुरुस्त है, जिस तरह तुम्हारे अकीदे दुरुस्त हैं, उसी तरह क्या है तुम्हारी नस्लों के भी अकीदे दुरुस्त रहें। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कि कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफ़ा वाले। कि कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफ़ा वाले। वला तक़ूलू से साबित है जिंदगी उनकी, शहीद हो के भी जिंदा हैं करबला वाले। हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन, निकल पड़ेंगे ज़मीनों से करबला वाले। हज़रात चूँकि वक्त कम है, काम ज़्यादा है, अभी आपने बहुत अच्छी तकरीर हज़रत अल्लामा मोहसिन रज़ा मरकज़ी से समाअत की। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इनके फ़ौरन बाद हिंदुस्तान की उस अजीम आवाज़ से भी मुलाकात करनी है जो काफ़ी देर से मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। कमेटी वाले भी बहुत चालाक हैं, जो बाहर से शोरा बुलाए हैं वो बड़े रोक करके रखा है, तो उसकी वजह यह है कि 2 शेर कोई और बोलेगा। तो हमदम फैजी साहब से मुलाकात करनी है, उनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह आले नबी औलाद अली शहजादा पीर सैयद कमरुल हसन कादरी साहिब क़िबला का नूरानी खिताब होगा। उनके फ़ौरन बाद मुल्क हिंदुस्तान की एक और अजीम आवाज़ शार मुल्क हिंदुस्तान भाई हाशिम रज़ा हुसैनी, उनका कलाम होगा। उनके बाद कमेटी होगी, आप होंगे, हम होंगे, सलातो सलाम होगा, आप अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे, है कि नहीं इंशाअल्लाह। बस यही तरतीब है, आप बैठे रहें। अब मैं हुक्म की तामील करता हूँ 2 शेर पढ़ने के लिए। मद्दाह रसूल अकरम भाई तालिब रज़ा कादरी से है, हाफिज मोहम्मद तालिब रज़ा, वो मैक पर तशरीफ लाएं और 2 शेर से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर जल्ला करें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील करम व आलिहि व वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात पाक का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ, समाप्त कर लें। एक बात आपको दे या रसूलुल्लाह, दरे अक़दस पे हाले दिल, दरे अक़दस पे हाले दिल, सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। दरे अक़दस पे हाले दिल, सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अदब से बैठ कर उस गुंबदे हज़रा के साए में, अदब से बैठ कर उस गुंबदे
خضرا کے سائے میں ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو، نبی کی یاد میں آنسو بہانا آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور آخری بند سماعت کر لیں، مدد یا رسول اللہ، رسول اللہ مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ کہ ساری دنیا میں در آقا سے اچھا کیا ہے، جس نے طیبہ نہیں دیکھا تو دیکھا کیا ہے، کہ ساری دنیا میں در آقا سے اچھا کیا ہے، جس نے طیبہ نہیں دیکھا تو دیکھا کیا ہے، حشر میں سارے گناہگار اسی میں ہوں گے، میرے سرکار کے دامن کو سمجھتا کیا ہے، اس لیے کرتا ہوں توبہ میں گناہوں سے بہت، روح کب تن سے نکل جائے بھروسہ کیا ہے، پیاس کی فکر اگر ہوتی علی والوں کو وہ سمندر کو بلا لیتے یہ دریا کیا ہے۔ حضرات بہت اچھا کلام موصول سے آپ نے سنا، اب آپ اپنے آپ کو تیار کریں، ملک ہندوستان کے اس قیمتی لہجے سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو کافی دیر سے ممبر نور پر تشریف فرما ہے، مگر ان کے آنے سے پہلے ایک شعر سن لیں اور ماحول وہی بنائیں جو تقریباً آپ نے 10 یا 10:15 بجے کے وقت میں منایا تھا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے، ارے سبحان اللہ کو یار، کہ معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے، جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے، کہ معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے، جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے، مفتی آدم کو ہی دیکھا تو نجدی ڈر گیا، پھر کہاں آتا کوئی احمد رضا کے سامنے، مفتی آدم کو ہی دیکھا تو نجدی ڈر گیا، پھر کہاں آتا کوئی احمد رضا کے سامنے، باغیان اعلیٰ حضرت ہو یا صلح کلیت، ٹک نہیں پایا کوئی اختر رضا کے سامنے، ٹک نہیں پایا کوئی اختر رضا کے سامنے۔ اور دلشاد بھائی ایک شعر پڑھنے لگا ہوں ماں کے حوالے سے، سچی بات تو یہ ہے جو بیٹے اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں وہ شعر سننے کے فوراً بعد انشاءاللہ سیدھا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ ضرور کہیں گے کہ معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے، جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے، جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے، مفتی اعظم کو ہی دیکھا تو نجدی ڈر گیا، پھر کہاں آتا کوئی احمد رضا کے سامنے، ہاتھ اٹھا کر جب میری ماں نے مجھے دی ہے دعا، ہاتھ اٹھا کر جب میری ماں نے مجھے دی ہے دعا، آ نہیں سکتی بلا ماں کی دعا کے سامنے، آ نہیں سکتی بلا ماں کی دعا کے سامنے، آ نہیں سکتی بلا ماں کی دعا کے سامنے۔ اور دوستو ماں ماں ہوتی ہے یار، کسی نے کہا تھا کہ دل میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں، دل میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں، باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ
होती नहीं, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। तो आपके पड़ोसी कस्बा सेथल के एक शायर ने कहा था कि बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और यासीन नगर वालों, तुम सोचते होगे कि हसन रजा ने अम्मा के लिए तो शेर पढ़ दिया, अब्बा के लिए कब शेर पढ़ेंगे? तो आप परेशान ना हो, हम अम्मा के लिए शेर पढ़ना जानते हैं तो अब्बा के लिए भी शेर पढ़ना जानते हैं। जिन लोगों ने जिंदगी में कभी सोफा ना देखा हो वो एक मिनट सोफा देख ले। ये सोफा ऐसा होता है, इसमें एक आदमी बैठता है, कभी कभी दो भी बैठ जाते हैं, कभी कभी जरूरत ज्यादा पड़े तो तीन भी बैठ जाते हैं। तीन से ज्यादा चौथा नहीं बैठ सकता, अगर चौथा बैठेगा तो उसका इंतकाल हो जाएगा। ऐसा सोफा होता है। अब इसको देख लिया तो थोड़ी देर मुझे देख ले आप, लेकिन मुझे देख ले आप, मैं इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। ये सोफा क्या, इसमें लकड़ी है, मुझमें तो जान है यार। और ये लकड़ी तो कुछ बोलती नहीं, मैं हुजूर का जिक्र करता हूँ, है कि नहीं? जितने लोग अपने 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 बाप से मोहब्बत करते हैं, अब्बा की मोहब्बत में सीधा हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, जो अब्बा की मोहब्बत में हाथ नहीं उठा सकते वो कम से कम सास ससुर की मोहब्बत में हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। अरे जियो मेरे भाई। अब दो शेर सुनने देखे फैजी साहब में बाप के हवाले से, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। अरे यार जरा थोड़ा बोलो। बहुत सारे लोग उठकर चले गए, बड़ी तकलीफ हुई जो लोग गए उठ के। एक भी महफिल पाक से उठ के जाता है तो सच्ची बात ऐसा लगता है कोई पीठ पे अद्धा मार करके गया। सच्ची बता, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। क्या धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और ये बेटा, इस बेटे के हाल तो ये है, आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। जो जीते जी जिस बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। जो जीते जी जिस बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। भैया बहुत देर से बैठो, अब जगह हो गई, इधर आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, अच्छे लड़के आ जाओ, आगे बहुत। अब ये फैजी साहब बहुत बड़े शायर हैं, इत्तेफाक ये कहिए आज इनसे मुलाकात हो, तो जितनी अच्छी नात पढ़ते हैं उनसे कहीं ज्यादा आप सुनने का जज्बा बताइए। और सच्ची बात तो यासीन नगर मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, मुझे वक्त गुजरना कई मरतबा। इतने अच्छे लोग थे तो 2-4 दिन पहले से दावत खाते होते। अल्लाह सलामत रहे। हाथ उठाइए मेरा, हाथ उठाइए, सीधा हाथ अब्बा की मोहब्बत में, बायां हाथ अम्मा की मोहब्बत में। सीधा उठ गया समझूंगा अब्बा से मोहब्बत करता, अम्मा से नहीं। बायां उठ गया समझूंगा अम्मा से मोहब्बत करता, अब्बा से नहीं। मगर सोच समझ के हाथ उठाना। अगर किसी ने तुम्हारी अम्मा से खूब मुखबरी कर दी कि तुम्हारे नाम पे तुम्हारे लाडले ने हाथ नहीं उठाया, तो सुबह उनका हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाएगा। तो सच्ची बता, दिल से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शहीद आदम, पैगाम गौसे आदम, मसलके आला हज़रत, पैगाम जिंदा शहमदार, पैगाम वैसे करती जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। खुसूसियत के साथ पूरे मुल्क भारत में अपनी निकाबत से मसलक आला हज़रत की तर्जुमानी करने वाला नक़ीब आज़म हिंदुस्तान पासवान मसलक आला हज़रत मौलाना हाफ़िज़ कारी हसन रज़ा साहब क़िबला बरेलवी, वहीं पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना उवैस रज़ा मंजरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना दिलशाद साहब क़िबला व दीगर तलवाए किराम, अरकान कमेटी, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हमदम फैज़ी को मोहब्बत भरे सलाम दुआ कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बहुत शानदार प्रोग्राम। यासीन नगर के तमाम तरजिंदा मुसलमानों को मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद। बहुत अच्छे लोग हैं आप। मैं हसन भाई ने जब मुझे दावत दी, बताया, तो मुझे पता भी नहीं था कि यासीन नगर नवाबगंज में किधर है।
नवाबगंज तो बहुत आए, इसके अलावा भी बहुत जलसों में शिरकत हुई, लेकिन आज जब आप हजरात से मुलाकात हुई तो दिल बाग बाग हो गया। मेरे पास टाइम बहुत कम है और हो सकता है कि आपके पास भी टाइम कम हो। मैं सिर्फ आपको 2-4 शेर पहली नात के, 2-4 शेर बाद की नात के, इसलिए कि मेरे नंबर पे कैद लग गई है। इसके बाद जो नातें सुनना है वो हमदम फैज़ी करके यूट्यूब पे डालिएगा, फिर पूरी नातें सुनिएगा। बहुत नातें हैं। अब मैं मजबूर हूँ, चूँकि कैद अगर मैं तोड़ता हूँ तो ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। यासीन नगर में बस 15-20 मिनट तक मुलाकात मेरी रहेगी। इस बीच में जितने मिसले आ जाएंगे मैं पढ़ दूँगा। आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वहीद भाई माशाअल्लाह बहुत पुराना सॉन्ग है और मेरी आपकी बहुत पुरानी मुलाकात है। कई 100 नाते आपके सॉन्ग में रिकॉर्ड है, रिपीट के साथ, हल्का रिपीट के साथ सॉन्ग में। जी ठीक है। मैं अरकान कमेटी का एहतराम करते हुए हमारे कारी हसन साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब हैं, मैं इनकी दावत मोहब्बत पर हाजिर आया। मतला पेश करता हूँ, सुनेंगे आप? थोड़ी देर मुझे सुन लेंगे आप? अगर मेरे साथ आप थोड़ी देर रहे तो हो सकता है मैं भी आपके साथ हो जाऊँ, तो फिर बड़ा मजा आएगा। एक मरतबा झूम झूम कर वृंदावन से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु वादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेटा थोड़ा सा पायरी है, मिंबर रसूल है, अदब के साथ मतलब पढ़ता हूँ। मुलादा फरमाए। वो 12 तारीख दिल दोशंबा, वाह वाह, वो 12 तारीख दिल दोशंबा, वो 12 तारीख, वो 12 तारीख, वो 12 तारीख दिल दोशंबा, वो आने वाला मेरा नबी है। ऐसे नहीं पूरा मजमा जब हाथ उठेगा तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये बरेली शरीफ है और बरेली का जो इश्क है वो आपके साथ रहना चाहिए। मुलादा फरमाए कि वो 12 तारीख के दिल दोशंबा, वो आने वाला मेरा, क्या बात है, वाह वाह, वो आने वाला मेरा नबी है, 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 वो आने वाला मेरा नबी है। तमाम रोते तमाम रोते हुआ को आकर हंसाने वाला मेरा नबी है, मेरा सरजमीन यासीन नगर, मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है। एक बात हक को सदाकत के साथ दोनों हाथों को उठा के कह देंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी कुछ लोग हैं हाथ नहीं उठा रहे हैं, कोई मेरी शिकायत नहीं है। मेरे लिए आप नहीं बोलिएगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आए हैं तो हाथों को उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो आने वाला मेरा नबी है, मेरा नबी है, रहीम ऐसा करीम ऐसा, वो ऐसा मोहसिन, वो ऐसा दाता। मैं देखूंगा वाकई आप पूरी तरह बरेलवी हो, अगर बरेलवी हो तो सुन के दिखाना। मैं पढ़ता हूँ, किसी का हाथ नीचे, हाथ जब मेरा हाथ उठे तो पूरा मजमा मेरे साथ हो जाए। मुलादा फरमाए। रहीम ऐसा करीम ऐसा, वो ऐसा मोहसिन, वो ऐसा दादा, वो प्यार से उम्मत के
सैयद साहब का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादा पीर सैयद कमरुल हसन कादरी, शहजादा पीर सैयद कमरुल हसन कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, जमाते अहले सुन्नत की महान शख्सियत की आमद हो चुकी है। बैठे बैठे। मेरा नबी है, तेजी के साथ बैठ जाए। गौसे आजम की औलाद की आमद हुई, औलाद गौसे आजम जलवा फरमा हो गए। तेजी के साथ बैठ जाइए। बताओ मौलाना फरमाएं कि